चलिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं भाईजान लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम भाईजान? दिलसाद मुल्ला। मिजानुर रहमान मोल्ला। शाहरुख मोल्ला। साबिर मंडल। माशाल्लाह। तो भाईजान हम लोग सब मुसलमान भाई है, तो आप लोग से कुछ इस्लामिक सवाल जवाब करेंगे, इजाज़त है? इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। चलिए, तो भाईजान ये बताइए कि वो कौन से नबी हैं जिनके ऊपर कुरान शरीफ नाजिल हुई? कुरान शरीफ तो आसमानी किताब है, वो तो नाजिल हुई ना, तो किस नबी पे नाजिल हुई? कुरान शरीफ किस नबी पे नाजिल हुई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग के नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, तो कुरान शरीफ हम लोग के नबी के ऊपर नाजिल हुई है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आसमानी किताब, कुल आसमानी किताब कितने हैं? आसमानी किताब जैसे कुरान आसमान से नाजिल हुई, उसी तरह और भी किताबें हैं जो आसमान से नाजिल हुई है इस्लामिक, तो कितनी है तादाद? 3-4। आपको कुछ इल्म? नाम कुमार। देखिए, आसमानी किताबें तो वैसे बहुत सारी नाजिल हुई, कितनी छोटी बड़ी बहुत सारी नाजिल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे हुई, हाँ 4 किताबें। तो चारों के नाम पता है आपको? 1-2 ठो। बताइए। तैरत और क्या था? जबूर, कुरान, इंजिल और कुरान। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताबें जो है मशहूर 4 किताबें हैं। क्या है, ऐसे तो बहुत सारी हुई, लेकिन उनका नाम अभी फहरिस्त में मतलब जानता नहीं है ज़्यादा आदमी, लेकिन ये 4 किताबें मशहूर हैं। क्या है, हाँ सबको पता है कि 4 किताबें आसमान से नाज़िल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। चलिए माशाल्लाह। तो हम लोग के नबी के अब्बू जान का नाम? अब्दुल्ला। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। भाईजान थोड़ा इधर आ जाइए। भाईजान आ जाइए। माशाल्लाह। आपका नाम भाईजान? इरफान मुल्ला। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से हैं? ভালো আছেন তো? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ। আপনার থেকে একটা ইসলামিক প্রশ্ন করব। তো আপনি বলেন কি 5 ওয়াক্ত যে আজান হয়, দিন রাতে 5 টাইম আজান হয়, তো আজানের মধ্যে আমাদের নবীজির নাম কবার নেওয়া যায়? 10 বার। আমাদের নবীজির নাম কি? হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু হ্যাঁ, মোহাম্মদ। কি নাম? মোহাম্মদ। তো এই মোহাম্মদ লফজটি আজানের মধ্যে কয়বার এসছে? একটা আজানের মধ্যে হ্যাঁ, আজান যে হয় একবার, তো আজানের মধ্যে কবার নেওয়া যায় না? 2 বার। 2 বার। মাশাআল্লাহ। তো আজান মনে আছে তো? আজান বলে দেখান। মানে মাঝখানে একটু আচ্ছা, কোনো ব্যাপার নেই। তো আমাদের নবীজির নাম আজানের মধ্যে কয়বার? 2 বার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আর আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 2 বার বলা হয়। চলো, ভালো আছে মাশাআল্লাহ। তো কোরআন শরীফ কে কে পড়তে জানে? আমি ধরেছিলাম, ধরে আর মানে এখন পড়া হচ্ছে না। আপনার? আমি কোরআন শরীফ 2-4 পারা রিপিট করতে বাকি ছিল। কোরআন শরীফ না হয় নুরানি কায়দা রিপিট করতে বাকি ছিল, ধরতে পারিনি। হ্যাঁ, আপনি? মাশাআল্লাহ। পড়ছি ইনশাল্লাহ, এখনো পড়ছি। মাশাআল্লাহ। তো কোরআনের কয়টা সূরা याद আছে? 4-5টা। 4-5টা याद আছে। মাশাআল্লাহ। আপনার? তো নামাজ যখন পড়েন তো আলহামদু শরীফ পড়েন তো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, তো ওটা তো কোরআনেই আছে, কোরআনের বাইরে থোড়ি না আছে। তো ওটা মনে নেই? হ্যাঁ, তো হয়ে গেল সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরা মনে হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ যে সূরাটা আছে, তো এইসব তো কোরআনে আছে, কোরআনের বাইরে আছে নাকি এসব? তাহলে কোরআনের মধ্যে সূরা এইসব। চলো মাশাআল্লাহ। তো একটা প্রশ্ন করছি, যে জানবে বলে দেবে, ঠিক আছে? সব থেকে প্রথম কোন নবী এসছে? সবচেয়ে পহলে কোন নবী আয়ে? হ্যাঁ, হযরত আদম আলাইহিস সালাম। হযরত আদম আলাইহিসসালাম। আলাইহিসসালাম না, হযরত আদম আলাইহিসসালাম। মাশাআল্লাহ। তো আমাদের নবীজির আগে কোন নবী এসছে? নবীজির আগে ঈসা। হ্যাঁ, হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম। কি? মাশাআল্লাহ, হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম। একটা নবী আছেন যার উম্মতের উপরে, যার কওমের উপরে পানির আযাব হয়েছে। কিসের জানেন তো? কোন নবী? আপনার? ভুলে গেছি, শুনেছি। নূহ আলাইহিস সালাম। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম। কি? হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কশতি তৈরি করেছিলেন,
তো ওনার উম্মতের উপরে পানির আযাব এসেছিল, কি এসেছিল? মাশাআল্লাহ, নলেজ আছে কিন্তু শিখতে হবে ভাইজান। কি করতে হবে? শিখতে হবে। শিখবো তো ইনশাআল্লাহ। इंशाल्लाह। হ্যাঁ, मुसलमान यदि कुरान पढ़ते ना जाने तार की होवे? हम लोग मुसलमान भाई हैं, हम लोग अगर कुरान पढ़ना नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा यार? काम चलेगा? कुरान पढ़ना है और बेहतरीन पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? बेहतरीन। तो सीखेंगे तो माशाल्लाह। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 घंटा हम दुनियादारी में दे रहे। कहाँ दे रहे? दे रहे कि नहीं दे रहे? उसमें से अगर 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा निकाल के मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाए, कुछ जानकारी ले ले, इल्म हासिल कर ले, तो बुरी बात है क्या? आपके लिए अच्छा है कि नहीं है? तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। क्या कीजिए? और थोड़ा दाढ़ी रखने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए? एक ही ऐसा अमल है, इंसान के पास एक ही तो ऐसा अमल है जो मरने के बाद दिखता है कि हाँ ये इंसान अपने साथ लेके जा रहा है। सुन्नत, दाढ़ी ऐसा सुन्नत है जो दिखता है कि हाँ इंसान अपने साथ लेके जा रहा है। बाकी अमल तो नामा अमल में कौन जानता है? अल्लाह बेहतर जानता है कौन अच्छा करके जा रहा है, कौन ख़राब करके जा रहा है कि नहीं। लेकिन दाढ़ी जो है इंसान को दिखता है कि हाँ ये इंसान एक तो सुन्नत अपना साथ में लेके जा रहा है। तो रखेंगे तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आप लोग से मिलकर। दुआ कीजिएगा हम लोग के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।